Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine and studying well and enjoying your good health. May Allah bless you all the time. In this lecture, we will discuss about the input-output devices. We already discussed about the input and output devices, but not in detail. In this lecture, we will discuss different types of input and output devices in detail, and we will discuss different input devices and their working in detail. My lovely children, as you know that anything given to the computer is known as input, and the device which is used to enter the data or information into the computer is known as input device. Input devices provides the means of communication between a computer and outer world. User communicate with the computer through the input devices. We communicate with the computer, enter our commands or information into the computer by using the input devices, also known as peripheral devices because they surrounded the CPU and memory of the computer system. Some of the peripheral devices mean which are not directly connected to the CPU or which are not etched on the motherboard. We attach the devices through the ports with the motherboard are known as peripheral devices. Input devices are used to enter the data from the outside the world into the primary storage. Computer have the storage. We already discussed primary and secondary storage. When we enter the data through the input devices, data stored in the primary storage, and CPU take it from the primary storage and process the data. Then output devices supply the result of the processing from primary storage to user. Computer show the output or result after processing the data through different devices which are known as output devices. In this lecture, we will discuss only input devices in detail, and then in next lecture we will discuss about the output devices and their working. What is the role of input and output devices? Input data from external world. We use input devices to enter the data into the CPU or memory. We already discussed the data stored in the CPU is in the form of digital or in binary form, but we enter the data through input devices in different formats like text, graphics, and some other types. When we enter the data through the input devices, then input data coded in internal form which CPU can store or process. CPU receive the data from the input devices or primary memory or primary storage and process the data in internal form. Then it sent to the output devices. Output devices convert the digital data received from the CPU in the form that human acceptable form. Any human can interpret that data. What's that mean? मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका मतलब समझ आ चुका होगा कि हमारे पास हम इनपुट डिवाइसेस से डाटा एंटर करते हैं
जो कि हमारे पास ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस डाटा. तो इनपुट यूनिट कन्वर्ट दैट डाटा इनटू द फॉर्म दैट सिस्टम कैन प्रोसेस. तो हमारा जो इनपुट यूनिट होता है उसको ऐसी फॉर्म में, या इनपुट डिवाइसेस ऐसी फॉर्म में तब्दील कर देती हैं जिसे CPU या हमारा सिस्टम प्रोसेस कर सकता है. सिस्टम उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस को, अगर रिज़ल्ट शो कराने हो तो आउटपुट डिवाइसेस को, अदरवाइज स्टोरेज डिवाइसेस को सेंड कर देता है. हमारी आउटपुट डिवाइसेस उसे रिसीव करती हैं और उसको ऐसी फॉर्म में तब्दील करती हैं जिसे जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है और हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू नज़र आना शुरू हो जाता है. There are some commonly used input devices: keyboard devices, point and draw devices, data scanning devices, digitizer, electronic cards based devices, speech recognition devices, VN based devices. We discuss some of them in detail. Keyboard. What is keyboard? Keyboard allow the data entry into a computer system by pressing a set of keys, labels, buttons neatly mounted on keyboard connected to a computer system. मेरे बच्चे, हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू हम टेक्सचुअल डाटा इंटर कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और जो हमारा टेक्सचुअल डाटा होता है, ठीक है, वो हमारे कैसे इंटर करते हैं? बाय प्रेसिंग द कीज़ हमारे कीबोर्ड के ऊपर कीज़ होती हैं, उन कीज़ को प्रेस करते हुए हम डाटा इंटर कर सकते हैं. तो हमारे कीबोर्ड के डिफरेंट लेआउट होते हैं. Most commonly used layout of the keyboard is QWERTY. What's that mean, QWERTY? If we saw the keyboard or concentrate on the keyboard, the first key of the alphabet on the keyboard is Q, and the second one is W, third one is E, fourth one is R, then fifth T, and Y. So we call this layout or format QWERTY layout or QWERTY format because these are the first 6 keys on the keyboard from the alphabets. तो अल्फ़ाबेट से अगर आप लोग गौर करें कीबोर्ड के ऊपर जो पहली 6 कीज़ हैं, ठीक है, आप लोग को ये QWERTY नज़र आएंगी, इसलिए इनको मिला के ये कहा गया कि ये हमारे कीबोर्ड का लेआउट जो है वो कौन सा है? QWERTY लेआउट है, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है. जो भी मैं आप लोगों को कीबोर्ड की डिटेल में समझाऊंगा कि हमारे पास कीबोर्ड क्या होता है, किस तरह होता है, यह देख सकते हैं आप लोग. मेरे बच्चे, अब आप लोगों ने इस कीबोर्ड को गौर से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट्स दैट मीन और ये किस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है. और ये कीबोर्ड अभी हमने देखा कि ऊपर 101 कीज़ होती हैं हमारी. मैं आप लोगों को यहीं से बताता जाऊँगा ये कौन सी की किस काम के लिए यूज़ होती है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. कीबोर्ड हमारे पास कौन सा कीबोर्ड कहलाता है, ठीक है. ये जो हमारे पास ऊपर कीज़ नज़र आती हैं F1, F2, F3 सो ऑन F12 तक, दीज आर द फंक्शन कीज़. इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़ कहते हैं. अब ये क्यों यूज़ होती हैं, इनका क्या पर्पज़ होता है? मैं फंक्शन की से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमारे पास हम आगे मूव करते जाएंगे और इन सारी डिटेल आप लोगों को बता दूंगा कि ये कीबोर्ड क्या होता है. मेरे बच्चे, फंक्शन की हमारे पास जो डेफिनेशन है कि व्हाट आर द पर्पज़ ऑफ फंक्शन कीज़ और व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन कीज़. फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन कीज़ इज़ डिफाइंड इन द सॉफ्टवेयर. मेरे बच्चे, हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनका काम डिफरेंट होता है. डिफरेंट से मुराद ये होता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं सपोज डिफ़ाइन कर देता हूँ कि F1 अगर कोई प्रेस करेगा तो हेल्प ओपन हो जाएगी, जो मोस्ट कॉमनली हर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफ़ाइन करने जो लोग डिफ़ाइन करते हैं तो F1 को हेल्प के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह F2 की डिफ़ाइन कर दूँगा, F3 की डिफ़ाइन कर दूँगा. तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनकी फंक्शनैलिटी अलग से डिफ़ाइन होगी. ये हमारी फंक्शन कीज़ हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, इनके फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर. तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर जब हमने इनको डिफ़ाइन किया होगा, जो की भी प्रेस करेंगे उसके मुताबिक काम करेगी. जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर F5 प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिफ़्रेश हो जाता है. रिफ़्रेश या रीलोड के लिए हमारे पास कौन सी की यूज़ होती है? F5 यूज़ होती है.
इसी तरह F1 हेल्प के लिए यूज़ होती है। अगर आपने रीनेम करना है किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी फ़ाइल को, किसी सॉन्ग को, तो आप लोग F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मीन कि हमारे पास वहाँ पे हमें रीनेम का ऑप्शन दे देगा, आप लोग रीनेम कर सकते हैं। इसी तरह F3 प्रेस करेंगे तो चेंज केस से मुराद यह है कि अपर केस लोअर केस अगर आप लोगों ने करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F3 पे प्रेस करेंगे। इसी तरह F5 से हमारे पास रिफ़्रेश या रीलोड होता है। दीज आर द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन कीज़ एंड फंक्शन कीज़ फंक्शनैलिटी है डिफ़ाइन इन ईच सॉफ्टवेयर। हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनकी फंक्शनैलिटी अलग से डिफ़ाइन होती है। ठीक है, इसी तरह F9, F12, F10, F11, F12 प्रेस करोगे, ठीक है, तो आप लोग का हमारे पास मीन के अलग हर चीज़ का अलग फंक्शनैलिटी है, हर एक का अलग ऑप्शन है। अगर F12 प्रेस करते हो तो हमें सेव एज़ का ऑप्शन देता है। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स का अगर हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो हर जगह पे हर सॉफ्टवेयर में मेरे बच्चे इनकी अलग फंक्शनैलिटी होगी। तो इसके बाद हमारे पास एस्केप की है, कैंसल आर इनपुट इंटरप्ट एनी एक्शन। अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है, ठीक है, कोई भी एक्शन क्या करना है, उसको क्लोज़ करना है, उससे बाहर आना है। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, तो एस्केप की प्रेस करते हैं। ये जो ऊपर कॉर्नर के अंदर हमारी पहली की होती है ESC, जिसके ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब है एस्केप की। इसी तरह हमारे पास प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है। ये स्क्रीन को प्रिंट करके, जैसे आप लोगों ने डेस्कटॉप पे या आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी आ रहा है स्क्रीन प्रिंट लेना है, तो वो मैं आप लोग सिखाऊंगा भी सही कि इसका प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं। इसी तरह स्क्रॉल या लोड के हमारे पास है, ये स्क्रॉल का बटन है या लोड का बटन है हमारे पास। ठीक है, ये होम, इंसर्ट, डिलीट एंड ये हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट काम करते हैं। ये डिलीट बटन है, ठीक है, ये होम, ये 4 बटन हमारे पास स्क्रॉल बटन कहलाते हैं। होम हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरू में ले आता है, पेज अप नेक्स्ट ऊपर वाले पेज के ऊपर ले जाता है, पेज डाउन नेक्स्ट वाले पेज के एंड हमें एंड वाले पेज के ऊपर ले जाता है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये बटन्स मौजूद हैं जिनको हम स्क्रॉल बटन कहलाते हैं। ये नम लॉक है, ठीक है, नम लॉक बटन ये बताता है, ये मेरे बच्चे यहाँ से ये लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स, ये लाइट्स होती हैं। नम लॉक बटन ऑन है, ऑफ़ है, कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ़ है। ये कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर होती हैं, कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर नहीं होती। ये जो आप लोगों को नम लैक कीपैड नज़र आ रहा है, नंबर पैड, ये नंबर पैड हमारे पास कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर होता है और कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है, कुछ लैपटॉप्स के ऊपर होगा, कुछ लैपटॉप्स के ऊपर नहीं होगा। तो ये नंबर पैड को इसको एक्टिव करने के लिए आप लोग नम लॉक वाला बटन यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा मेरे बच्चे, अगर नम लॉक ऑन होगा, ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ ये वाली कीज़ काम करेंगी, नंबर पैड वाली अदरवाइज़ नहीं करेंगी। अगर नम लॉक ऑफ होगा तो ये वाले बटन काम नहीं करेंगे हमारे, ये 1 2 3 जो हमारे पास नम लॉक नम पैड के ऊपर, नंबर पैड के ऊपर मौजूद हैं। ठीक हो गया। ये जो 4 हमारे पास कीज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं, एरो कीज़। ये लेफ़्ट, राइट, ठीक है, अप एंड डाउन, ये हमारे पास क्या होती हैं, कर्सर को लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर नीचे मूव करने के लिए यूज़ होती हैं। ये हमारे पास क्या है, 4 कर्सर कंट्रोल कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो कीबोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारा क्या कहलाता है, मेन कीबोर्ड कहलाता है। ये हमारा मेन कीबोर्ड है। अब इन मेन कीबोर्ड की कीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करता जाऊंगा और सारी चीज़ें बताता जाऊंगा कि ये इसकी कौन कौन सी हमारे पास कीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कैप्स लॉक, कैपिटल लॉक, ठीक है, जिसको हम कैप्स लॉक कहते हैं। अगर ये ऑन होगा तो कीबोर्ड से जब हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होंगे ABC, तो ये बड़े लिखे जाएंगे। ठीक है, और अगर ये ऑफ़ होगा कैप्स लॉक, तो हमारे पास, आप लोग इंग्लिश के बच्चे हैं तो सेंटेंस केस, आप लोगों को पता है सेंटेंस केस क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। इट्स मीन कि एक सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो क्या होगा, बड़ा होगा, बाकी सारे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इसी तरह सेंटेंस केस ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, अगर ये कैप्स लॉक ऑन नहीं होगा तो सेंटेंस केस में होगा, मीन के सारे छोटे लिखे जाएंगे। ठीक है, बाकी इसी तरह हमारे पास शिफ्ट की होती है। ये शिफ्ट की अकेले इसका कोई काम नहीं है, इट्स यूज़ विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर कीज़। हमारे पास दूसरी कीज़ के कम्बिनेशन के साथ यूज़ होती है, ये अकेले इसका कोई काम नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बचे शिफ्ट एंड, ठीक है, शिफ्ट वाला बटन दबा के रखूँगा और मैं ये कर्सर कंट्रोल की यूज़ करूँगा तो सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है किसी चीज़ को। ठीक है, हमारे पास इसी तरह शिफ्ट वाला बटन, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ, शिफ्ट की का काम आया तो मैं आप लोगों को साथ साथ यहाँ पे देखें मेरे बच्चे, 2 आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कीज़ आप लोगों को नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर 2
लेटर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये 1 2 और उसके ऊपर @ साइन है, ठीक है, 3 के ऊपर इस तरह हैश का साइन है, 4 के ऊपर डॉलर साइन है, 5 के ऊपर परसेंटेज का साइन है। मेरे बच्चे अगर मैं खाली प्रेस कर दूंगा 5 तो 5 लिखा जाएगा, ये वाला बटन प्रेस करूंगा तो, ठीक है, यानी नीचे वाला लिखा जाता है। जिन कीज़ के ऊपर 2 आप लोगों के निशान हों या 2 हमारे पास सिंबल्स हों, उनमें से कौन सा लिखा जाएगा, जो नीचे वाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है। अगर आपने उससे ऊपर वाला लिखना है तो फिर शिफ्ट दबा के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर शिफ्ट की दबाएंगे, शिफ्ट और उसको एक साथ दबाएंगे तब वो ऊपर वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट की हमारे पास क्या है, दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसका भी डिफरेंट वर्किंग है, वो हम देख लें। इसी तरह कंट्रोल की का अकेला कोई काम नहीं है, ये भी दूसरों के साथ कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसा कि हम लोग कंट्रोल और C प्रेस करते हैं क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कंट्रोल और V प्रेस करते हैं पेस्ट करने के लिए। तो ये दूसरे कीज़ के साथ कम्बिनेशन के तौर पर क्या होती है, यूज़ होती है। ये विंडोज़ बटन होता है, तो विंडोज़ बटन के ऊपर क्लिक करने से विंडोज़ ऑप्शन आ जाते हैं, हमारे पास मेन्यूज़ ओपन होती हैं, ठीक है। आल्ट की है, ये आल्ट की भी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है, अकेले इसका वर्किंग कोई नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास Alt + F4 तो क्लोज़ और एग्ज़िट विंडो, जो विंडो आप लोगों की ओपन होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। जैसे अभी ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये नज़र आ रही है, मैं Alt और F4 प्रेस करूँ तो ये मेरे डॉक्यूमेंट जो खुले हुए नज़र आ रहे हैं ये क्लोज़ हो जाएंगे, ये विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, कम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह जो हमारी ये बड़ी की होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बार। ये हमारी क्या है, स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो जब आपने एक कहीं पे स्पेस देनी हो, जैसे मैंने अपना नेम लिखा, ठीक है, और मुजम्मिल और आगे स्पेस देनी थी, तो ये स्पेस बार प्रेस करूँगा, फिर महबूब लिखूँगा, ठीक है। इसी तरह ये स्पेस बार हमारे डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म, जैसे आप लोग सॉन्ग सुन रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए और उसको दोबारा चलाने के लिए भी इसकी डेफिनेशन की जाती है, और उसको मीन के डिफ़ाइन किया होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको पॉज और दोबारा स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ होती है। इसी तरह, ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे ये आल्ट की का मैंने बता दिया, ये विंडोज़ की है, ये मेन्यूज़ की है, जिसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आएंगी, ठीक है। जब इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट होती है। ये कंट्रोल की आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ होती है। ये एंटर की है, जिसके ऊपर एंटर लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, ये एंटर की हमें कहाँ पे ले जाती है, ठीक है, जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाती है हमें, या फिर जो आप लोग का सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है, सपोज़ एक ड्राइव को या एक फ़ोल्डर को आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, वो हाईलाइटेड है, अब उस एंटर प्रेस करेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ज़्यादातर जो हमारी एंटर की है, ठीक है, किस काम के लिए यूज़ होती है, ये नेक्स्ट हमारे पास लाइन के ऊपर ले जाती है हमारे पास हमें। और जब मैंने आपको बताया कि जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनको ओपन करने के लिए भी क्या है, एक्टिव कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये आप लोगों का हमारे पास क्या था, कीबोर्ड का कुछ स्ट्रक्चर था जो आप लोगों ने देख लिया। हमारे पास ये सारी कीबोर्ड की कीज़ होती हैं। मैं फिर बता दूं कि जो आप लोग कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिनके, ये टैब की हमने नहीं पढ़ी, टैब की मेरे पास बच्चे जिसके ऊपर टैब लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें डॉक्यूमेंट जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल स्पेसेस, यानी ये ऑलरेडी डिफ़ाइन होते हैं कि कितने स्पेसेस आगे जंप करेगी, तो हमें जंप कराता है। सपोज़ मैंने अगर अपना नाम लिखा और उसके बाद मैं 5 स्पेसेस देना चाहता हूँ, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 5 स्पेसेस डिफ़ाइन होते हैं। टैब प्रेस करूँगा, 5 स्पेसेस, कर्सर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हैं, ये सारी कीज़ होती हैं। आगे मैं इनकी डिटेल भी बताऊँगा कि इन सेमी जो हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर जो कीज़ हैं उन सारी कीज़ का क्या मतलब होता है। बाकी ये अल्फ़ाबेट, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है। तो ये सारी ब्रैकेट्स वगैरह, ये इनका क्या काम है। ये बैक स्पेस कीज़ हमारी जो लास्ट रह गई थी मेरे पास, बैक स्पेस की है मेरे बच्चे। बैक स्पेस की का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, BS इंग्लिश, वहाँ लास्ट वाले पे मेरा कर्सर होगा, मैंने इंग्लिश लिखा, SH के बाद कर्सर होगा। अब मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगा तो हमारी लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ एक जो मेरे पास करैक्टर होगा उसको मिटा देगा। यानी हमारे पास H के बाद अगर कर्सर है तो मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगा तो H मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो S डिलीट हो जाएगा। इसी तरह बैक स्पेस एक करैक्टर हमारे लेफ़्ट साइड से क्या होता है, डिलीट करता जाता है। इस
तरह डिलीट की हमारे पास सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए या राइट साइड से एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये हमारे पास कीज़ के जो आप लोगों को ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टैब, गो टू द नेक्स्ट टैब और द ऑप्शन और द ऐड एक्स्ट्रा स्पेसेस जाता है या फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर ले जाता है। ठीक है, इसी तरह Alt F4 क्लोज और एग्जिट विंडो, कंट्रोल प्लस F4 क्लोज और एग्जिट विंडो। इसी तरह Alt प्लस टैब, Alt और टैब वाला प्रेस करोगे तो स्विच बिटवीन रनिंग प्रोग्राम। अगर सपोज़ आप लोगों ने गाना चलाया हुआ है, ठीक है, जैसे ये मैंने अभी OBS चलाया हुआ है और इसके अलावा मैंने ये डॉक्यूमेंट्स चलाए हुए हैं, मैं अब अगर मैं कौन सी की प्रेस करूँगा, ठीक है, सपोज़ मैं Alt और टैब एक साथ प्रेस करूँगा, जैसे ये Alt और टैब मैंने प्रेस किया तो ये देखें ये रनिंग प्रोग्राम मेरे सामने आ गए। ठीक है, अब मैंने इनके आगे किसके ऊपर जाना है, ठीक है, कौन सा मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो एरो की से मैं आगे मूव करके कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यही सिलेक्ट करना है जो मेरा चल रहा है, तो मैंने उसको दोबारा सेलेक्ट कर दिया। तो ये हम Alt और टैब हमारी ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसी तरह विंडो वाली की प्रेस करके और R वाले की प्रेस करोगे तो हमारे पास स्टार्ट रन, तो स्टार्ट वाला बटन यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखें विंडो और आर्ट मैं प्रेस करूँगा तो क्या हुआ है, ठीक है, ये रन वाला ऑप्शन मेरे पास आ गया कि मैंने कोई चीज़ रन करनी है तो यहाँ पे मैं क्या कोई कमांड लिखूँगा तो मेरी चीज़ क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शन मौजूद होती हैं, डिफरेंट शॉर्ट कीज़ मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे भी मैंने शॉर्टकट कीज़ इन नोट्स के अंदर ऐड की हुई हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, जो मेन्यूज़ यूज़ एज राइट क्लिक, ठीक है, F12 सेव एज मैं आप लोग पहले बता चुका हूँ, कैप्स लॉक का क्या काम है। ठीक है, विंडो वाला बटन और D वाला बटन दबाऊंगा तो हमें किसके पे ले जाएगा, गो टू द डेस्कटॉप के ऊपर ले जाएगा। विंडो प्लस L वाला की प्रेस करूँगा, जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास है, मैं विंडो वाला बटन और L वाला बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, तो मेरा लॉक हो जाएगा, यानी हमारे पास यूज़र लॉक हो जाएगा, दोबारा हमें पासवर्ड देना पड़ेगा ओपन करने के लिए। ठीक है, इसी तरह विंडो वाले लोगों की प्लस M तो मिनिमाइज़ ऑल विंडोज़, उनको मिनिमाइज़ कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं विंडो वाला बटन प्रेस करता हूँ और M करता हूँ तो ये देखें मिनिमाइज़ हो गया। ठीक है, इसी तरह जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकली मेरे बच्चे साथ साथ करनी है। कंट्रोल प्लस माउस, कंट्रोल वाला बटन दबा के रखूँगा, माउस के ऊपर जो एक व्हील होता है उसको दबाता रहूँगा तो स्क्रॉल करता जाएगा। ठीक है, और उसका साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज द साइज़ ऑफ आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन का साइज़ छोटा बड़ा कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप लोगों ने इनको पढ़नी है। तो ये हमारे पास कीबोर्ड था, ठीक है, जो कि हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसी तरह इंट्रोडक्शन कंप्यूटर कीबोर्ड एप्लीकेशन, ये हमारे पास अगर हम उर्दू के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं, फोनटेक कीबोर्ड, उर्दू फोनटेक कीबोर्ड, ये हमारे पास क्या है, फोनटेक कीबोर्ड होता है। बैक स्पेस का आप लोगों को पता है, ठीक है, एंटर शिफ्ट, ये सारे वही चीज़ें हैं। और इसके अंदर भी आप लोगों को ये ऑप्शन यानी उर्दू फोनटेक कीबोर्ड है जो हम क्या कर सकते हैं, उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ठीक है, राइट शिफ्ट, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट कीज़ हैं जो हमारी क्या होंगी, यूज़ होंगी, हम इनको नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे पास कंप्यूटर कीबोर्ड के की के एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन सी की किस काम के लिए यूज़ होती हैं, वो आप लोगों ने देखनी है। देखिए मेरे बच्चे, ये टाइल साइन होता है, ठीक है, इसको हम टाइल सिंबल कहते हैं, तो इसकी सिर्फ ये याद रखते जाना है। इसी तरह ये जो ऊपर आप लोगों को एक नज़र आता है एक्यूट बैक, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल कोटेशन भी जिसको कहा जाता है लेफ़्ट कोटस, ओपन कोटस और इसको पुश भी कहते हैं, तो ये इनके नाम है। इसी तरह ये जो सिंबल है इसे इंग्लिश के आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आप लोगों ने जब इसके पंक्चुएशन मार्क्स पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट और बैंक भी इसको कहते हैं, ठीक है, एम्परसेट, एरोबेस, ठीक है, एस्पेरेंट, एट और एट सिंबल इसको कहा जाता है, एट द रेट सिंबल जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, ये आगे एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे ये हैश है, ठीक है, एक्टोफर भी कहते हैं इसको, नंबर भी कहते हैं, पाउंड के लिए भी यूज़ करते हैं, शार्प और हैश, ये सारे आप लोगों के सिंबल मैंने आप लोगों के नोट्स के अंदर क्या किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं कि किसको क्या सिंबल कहा जाता है। ठीक है, ये सेंट साइन है, ये डॉलर साइन है, ये यूरो का साइन है, ये पाउंड स्ट्रिंग है, जेनेरिक करेंसी, मैक्रो सेक्शन, परसेंटेज, डिग्री, ठीक है, कैरेट और सरकमफ्लेक्स जिसे हम पावर वाला बटन कहते हैं वो हमारे पास, एम्परसेंट, ठीक है, एम्परसेंट और एंड इसको कहा जाता है, एस्टेरिक साइन है हमारे पास, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, तो ये सारे हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। अब इसके ऊपर टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है इनपुट डिवाइसेस के अंदर।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था बच्चे, इनपुट डिवाइसेस। जब हमने ये कीबोर्ड की बात की, कीबोर्ड हमारे पास क्या था। अब इसके बाद पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस यूज टू रैपिडली पॉइंट टू एंड सेलेक्ट आर ग्राफिक आइकॉन ऑन द मेन्यू आइटम्स फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI और स्क्रीन। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास जैसे हमारे पास माउस पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर पॉइंट एंड ड्रा की एग्जांपल कर रहे हैं, तो माउस वगैरह हो गया। यूज टू क्रिएट द ग्राफिक एलिमेंट ऑन द स्क्रीन सच एज लाइंस, कर्व्स एंड फ्री हैंड शेप्स। ये ड्रा करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। सम कॉमनली यूज पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस आर माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, light pen and touch screen. All are these the input devices and point and draw devices. We will discuss about the mouse. What is mouse? Mouse commonly used in personal computers and workstation. मैं अपने नोट से इसकी आप लोगों को डायग्राम और ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि माउस के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे अभी हमने कीबोर्ड का देख लिया, तो आप लोगों के नोट्स के अंदर इसी तरह माउस का भी ऑप्शन, माउस भी मौजूद होगा। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ माउस। ठीक है, तो माउस हमारे पास होता क्या है। माउस मेरे बच्चे यहाँ पे हैव टू नो बिफोर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। हमें ये कंप्यूटर स्टार्ट के लिए ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास माउस ऑपरेशंस, माउस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारे पास पॉइंट आउट और ड्रा करने के लिए यूज़ होती है। अब इसके ऑप्शन ऑपरेशंस क्या हैं। पॉइंट का क्या मतलब है, यानी माउस से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आप लोग का ये माउस मैं दबा रहा हूँ, ये मेरा हैंड आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसी तरह हम किसी भी फोल्डर को मूव द माउस अनटिल द पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप इज़ पोजीशन ऑन द एटम। जिसको हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं उस पोजीशन तक ना पहुँच रहा है, तो हम माउस को मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्लिक, प्रेस एंड रिलीज़ द प्राइमरी माउस बटन। जो माउस बटन है उनको प्रेस करते हैं, ठीक है, और उनको रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक और लेफ़्ट बटन क्लिक, राइट बटन क्लिक। फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हमारे पास डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, ड्रैग। ठीक है, तो राइट ड्रैग एंड रोटेट व्हील, ये सारे फ्री स्पिन व्हील, ये सारे इनके ऑप्शन मौजूद हैं। मेरे बच्चे राइट क्लिक जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेस एंड रिलीज द सेकेंडरी माउस बटन। ठीक है, विच इज़ यूजुअली इज़ द राइट माउस बटन, जो कि हमारे पास कौन सा बटन होगा, राइट। ये आप लोगों को माउस नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट बटन है, ये क्या है इसका, राइट बटन है। ये दरमियान में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये व्हील है। ठीक है, नॉट ऑलवेज़, ज़रूरी नहीं है कि व्हील हर माउस के ऊपर अवेलेबल हो, लेकिन ये हमारे पास स्क्रॉल व्हील कहलाता है। यहाँ हमने अपना हाथ रखना होता है पाम रेस्ट, कि हमारे ये इस तरह बनाया जाता है कि आप लोगों के हाथ थके नहीं और आप लोगों के हाथों को सुकून मिले। तो हमारे इसके माउस एक्शन कौन से हैं, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, पॉइंट एंड ड्रैग। तो इनके क्या क्या मतलब है मेरे बच्चे, आप लोगों ने यहाँ से देखते जाना है। ठीक है, कि जब आप लोग राइट क्लिक करते हो, प्रेस द रिलीज सेकेंडरी माउस बटन विच इज़ यूजुअली इन द राइट साइड, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू। तो इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, हमें शॉर्टकट मेन्यू यानी उसके ऑप्शन दिखा देगा। सपोज़ किसी फोल्डर की हमने कोई ऑप्शन देखना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमें कॉपी, कट, पेस्ट या उसकी प्रॉपर्टीज़ की ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर देगा। इसी तरह डबल क्लिक से हमें ओपन कर देगा। क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट वाले बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, बटन ट्वाइस विदाउट मूविंग द माउस, माउस को मूव किए बगैर स्टार्ट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को चला देगा, आर द प्रोग्राम फीचर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने किसी सॉन्ग को चलाना हो तो उसको क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो लेफ़्ट वाले बटन को, उसके ऊपर जाके ट्रिपल क्लिक, क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन 3 टाइम्स विदाउट मूविंग द माउस, माउस को मूव किए 3 दफ़ा क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे तो सेलेक्ट अ पैराग्राफ। मैं ये आप लोगों को करके दिखाऊंगा जब आप लोग वर्ड आप लोगों को सिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हमारे पास ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता है। ड्रैग वाला बटन क्या होता है, ड्रैग का क्या मतलब है मेरे बच्चे, घसीट के ले जाना किसी चीज़ को। पॉइंट टू एन एटम, होल्ड ऑन द लेफ़्ट माउस बटन, आप लोग उस एक पॉइंट के ऊपर ले जाएं, किसी फोल्डर के ऊपर ले जाएं या किसी सॉन्ग के ऊपर ले जाएं, वहाँ लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करके रखें। ठीक है, और उसको जब उसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा और लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो आप लोगों को क्या करेगा, उसको ड्रैग कर रहा होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, अगर कोई फोल्डर मेरे पास ओपन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अभी देखें कि मेरे पास ये वाले नज़र आ रहा है, मैं लेफ़्ट वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरे पास, और जिस तरफ ही मूव करूँगा माउस को तो ये ड्रैग होता जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ड्रैग एंड, इसको ड्रॉप कहते हैं। और जब रिलीज़ करते हैं तो इसका मतलब है हमने उसको क्या किया है, ड्रॉप किया है।
इसी तरह हमारे पास राइट ड्रैग पॉइंट ऑन एन एटम, होल्ड ऑन द राइट माउस बटन, राइट माउस वाला बटन प्रेस कर दबा के रखें, ठीक है। एटम टू डिज़ायर लोकेशन ऑन द स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर आप रिलीज़ करेंगे तो उसका क्या है, डिस्प्ले या शॉर्टकट मेन्यू आफ्टर मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्राम वन लोकेशन टू एन अदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाएंगे तो उसकी शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगी। रोटेट व्हील को रोटेट करते रहेंगे तो स्क्रॉल वर्टिकली डाउन एंड अप, जैसे आप लोग फेसबुक को स्क्रॉल किए जा रहे हो तो इसी तरह उस व्हील को स्क्रॉल करोगे तो वो हमें नज़र आएगा। इसी तरह प्रेस द व्हील बटन वाइल मूविंग द माउस को मूव कर रहे होंगे, ठीक है, स्क्रॉल कंटिन्यूसली, यानी व्हील वाला बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो कंटिन्यूसली वो मूव करता रहेगा, ठीक है। टिल्ट व्हील, प्रेस द व्हील टुवर्ड द राइट और लेफ्ट, राइट साइड के ऊपर व्हील को ले जाएंगे, स्क्रॉल हॉरिजेंटली वो होगा स्क्रॉल ही। इसी तरह अगर लेफ़्ट पे ले जाएंगे तो लेफ़्ट स्क्रॉल होगा। प्रेस द बटन ऑन द साइड ऑफ द माउस, ठीक है, साइड के ऊपर एक बटन होता है, विद योर थंब अपने अंगूठे से मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड थ्रू द वेब पेजेस को फॉरवर्ड और बैक साइड पे मूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माउस का इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माउस किस तरह आप लोग यूज़ कर सकते हो। मेरे बच्चे अब हम वापस अपने ठीक है, तो हमारे पास माउस प्रैक्टिकल, लेफ़्ट क्लिक द कंप्यूटर आइकॉन, आप लोगों ने ये करके देखने हैं जो आप लोगों के नोट्स में मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है मेरे बच्चे। आप लोग ये हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट था, माउस का था। ट्रैक बॉल, इसी तरह हमारे पास ट्रैक बॉल होती है, ये हमारे पास बटन बने होते हैं इसके ऊपर, उसी तरह जैसे माउस की तरह ही काम करती है। और जब हमने ये ट्रैक बॉल को मूव नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये बॉल होती है जहाँ पे अभी मेरा आइकॉन है, बॉल टू द रोल्ड विद द फिंगर, इसको हम अपनी उंगली से मूव करते हैं तो हमारा पॉइंटर क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है। जैसे माउस को मूव करना पड़ता है, लोग जगह चाहिए होती है इधर उधर मूव करने के लिए, इसको मूव नहीं करते हम, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करेंगे कॉमनली यूज़ इन लैपटॉप, ये ज़्यादातर लैपटॉप और नोटबुक्स के साथ क्या होता है यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जगह कम हो, किसी चीज़ माउस को रोटेट करने के लिए माउस की जगह मौजूद ना हो तो हम ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेरे बच्चे जॉयस्टिक है, ठीक है, यहाँ से गेम्स वगैरह खेलने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होती है। क्लिक बटन है, ऊपर बना होता है, स्टिक होती है, ठीक है, ये बॉल होती है जिससे रोटेट करते हैं तो इधर उधर मूव करता है। लाइट इंडिकेटर है, ठीक है, सॉकेट है इसकी जिसके ऊपर क्या हो रहा होगा, ये हैंडल हमारा मूव कर रहा होगा, स्टिक मूव कर रही होगी। कॉमनली यूज़ फॉर वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, ये वीडियो गेम्स वगैरह सिमुलेटर सिमुलेशन के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस, जब अब इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है तो आप लोग उसके साथ कोई भी डिजिटाइजर के ऊपर ड्रा कर सकते हो। यूज़ टू डायरेक्टली पॉइंट, ठीक है, इट विद एन वन स्क्रीन टू सेलेक्ट मेन्यू आइटम्स और आइकॉन डायरेक्टली ड्रा द ग्राफिक्स ऑन द, जैसे अभी आप लोगों को डायग्राम से नज़र आ जाएगा कि हमारे पास क्या है। कैन राइट विद इट ऑन द स्पेशल पैड के ऊपर लिख के डायरेक्ट इनपुट ऑफ द रिटर्न इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोग अपने हाथ से लिखोगे वही इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेम क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसी तरह जब हम टच स्क्रीन आप लोगों को पता है कि इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, ठीक है, ये दोनों हमारे पास काम करती है। मोस्ट सिंपल इनिशिएटिव एंड ईजीएस्ट टू लर्न ऑफ द ऑल इनपुट डिवाइसेस, एनेबल यूज़र टू चूज़ फ्राम द अवेलेबल ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन होते हैं आप लोग अपनी फिंगर से टच करके क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें मैं इसलिए गुजार रहा हूँ जिनका आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं पता होंगी वो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता जाऊँगा। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस दैट एनेबल द डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्राम द सोर्स डॉक्यूमेंट, हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे हमारे पास पेज है, ये मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट है, उससे हमने डायरेक्ट डाटा किस में लेके जाना है, कंप्यूटर के अंदर लेके जाना है, हमने कीबोर्ड नहीं यूज़ करना। जैसे एक तो ये तरीका है कि मैं उसको देख के कीबोर्ड से टाइप करूँ, डाटा इंटर होता जाएगा, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट उसको पेज को स्कैन करूँ और कंप्यूटर में उसका डाटा चला जाए। एलिमिनेट द नीड टू की इन द टेक्स्ट डाटा इनटू द कंप्यूटर, तो ये हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ये बेसिकली किस लिए, फॉर्म डिज़ाइन एंड इंक स्पेसिफिकेशन यूजुअली बिकम्स मोर क्रिटिकल फॉर द एक्यूरेसी, ठीक है। इसकी डिमांड हाईली क्वालिटी ऑफ द इनपुट डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा क्या जाएगा, उसी क्वालिटी से जाएगा। इमेज स्कैनर, इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसलेट द पेपर डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ये हमारे पेपर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके किस में भेज देगा, हमारे कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ द स्कैन इमेज इज इट्स, ठीक है, बिट मैप रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सेव करते हो, आप लोग के जो भी डिग्रीज़ हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी डिग्रीज़ जो भी मेरे बच्चे पढ़ चुके होंगे, आप लोग इंटर तक कर चुके हैं, मैट्रिक है, इंटर है, तो उनको स्कैन करा के अपनी ईमेल के ऊपर सेव कर लें। खुदा ना खास्ता कोई चीज़ गुम हो जाती है
या फिर अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का कोई वेस्ट हो जाते हैं तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, उनकी कापीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा गूगल ड्राइव के ऊपर आप लोग कैसे डाटा सेव कर सकते हो अपने 15 GB तक का फ्री। तो आप लोगों को वहाँ पे रखना चाहिए, कहीं पे भी आप लोग को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। ये ज़्यादातर इमेज स्कैनर यूज़ होते हैं जो फ्लैट बेड हैं, या ये नहीं जैसे आप लोग फ़ोटो कापी मशीन देखी होगी, आप लोग पेज रखते हो, वो पहले स्कैन करता है उसको, फिर बाद में उसका प्रिंट निकालता है। तो इसी तरह यहाँ पे ये स्कैनर होता है, इस स्कैनर से हम पहले स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाटा सेंड कर सकते हैं। ये हमारे हैंड हेल्ड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी चलें जी गौरमे पे गए होंगे या किसी और पे, तो उनके पास एक स्कैनर होता है अपने हाथ में, जो भी आप लोग चीज़ देते हो वो उसे स्कैन करते हैं, स्कैन करके वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग की कंप्यूटर में चली जाती है और आपको बिल निकाल के दे देते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR, ठीक है, ये स्पेशल डिवाइस है जो हमारे पास जो कैरेक्टर, यानी आमतौर पर जब हम एक पेज को स्कैन करते हैं मेरे बच्चे, वो इमेज की फॉर्म में जाती है हमारे कंप्यूटर में, जो सेव होती है वो एक तस्वीर की सूरत में होती है, इमेज की फॉर्म में सेव हो रही होती है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे OCR की, स्कैनर इक्विप्ड विद द कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड OCR सॉफ्टवेयर। मेरे बच्चे बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेटिव बना देना है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो इसलिए मेरे परेशान नहीं होना, हंस के खुशी खुशी ये लेक्चर लेने हैं। जैसा कि वो देखो ना मेरा बच्चा हंस भी रहा है, ठीक है। इसी तरह द बिट मैप इमेज ऑफ द कैरेक्टर्स, मेरे आप लोग का ये ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा एक कज़न बैठा है तो वो बेचारा हंसी जा रहा है कि सर देखें मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ाता होता हूँ तो उसको साथ बिठाता हूँ ताकि वो पढ़ता रहे, ठीक है। इसी तरह दैट कन्वर्ट्स द बिट मैप इमेजेस ऑफ द कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट, ठीक है, आस्की कोड्स, जो हमारे पास क्या हैं आस्की कोड्स हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसके स्कैनर इक्विप्ड विद द कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कॉल्ड OCR इसके अंदर होता है। दैट कन्वर्ट द बिट मैप इमेज को किस में तब्दील कर देगा, उसके आस्की कैरेक्टर के अंदर, यानी ABC जो हमारे पास हैं टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। एनेबल द वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट टेक्स्ट एंड आल्सो रिक्वायर द लेस स्टोरेज फॉर द स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट एज टेक्स्ट रेदर देन एन इमेज हमारे पास क्योंकि ज़्यादा जगह लेती है और जो टेक्स्ट होता है वो कम जगह लेता है, क्योंकि उसकी जो हमारे पास क्या है साइज़ होता है वो कम होता है। तो इसलिए ये हमारे पास इमेज की बजाय टेक्स्ट की फॉर्म में उसको तब्दील कर देगा, और हमारे पास हम टेक्स्ट को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे हम वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। OCR सॉफ्टवेयर इज़ एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स बिकॉज इट डिफ़िकल्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिकग्निशन एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइप फेस एंड फ़ॉन्ट्स, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के अंदर लोगों ने लिखा होता है, डिफरेंट हैंड राइटिंग होती है, तो उसको इनकी पहचानना क्या होता है, इसलिए ये एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, क्योंकि OCR के लिए रिकॉग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाना भी क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है। 2 स्टैंडर्ड OCR फ़ॉन्ट्स आर OCR A अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड OCR B यूरोपियन स्टैंडर्ड। ये फ़ॉन्ट क्या होता है वो हम वर्ड्स के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह होता है। इसी तरह ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR स्कैनर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ द मार्क बाय द पेंसिल। आप लोगों ने इंटर तक पेपर दिए हैं और सुनते आए होंगे कि MCQs सॉल्व करने हैं, और MCQs हमारे पास जो है ना कंप्यूटर से चेक होते हैं, सुना होगा ना। तो आज हमने देखना है कि कंप्यूटर से कैसे चेक होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा जो है हमारे पास डिवाइस यूज़ होती है चेक करने के लिए। तो OMR, ठीक है, यूज़ होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेरी यूज़फुल फॉर द ग्रेडिंग टेस्ट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर एनी इनपुट डाटा दैट इज़ ऑफ चॉइस ऑफ द सिलेक्शन नेचर। जैसे यहाँ पे देखें टेक्निक यूज़ फॉर द रिकग्निशन का मतलब क्या है, पहचान ऑफ द मार्क इन्वॉल्व फोकसिंग अ लाइट ऑन द पेज बीइंग स्कैन। एक लाइट पेज के ऊपर डाली जाती है जो उसको स्कैन करती है, कि डिटेक्ट करती है कि कहाँ पे क्या किया गया, मार्क किया गया। डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट पैटर्न फ्राम द मार्क्स, मार्क से क्या करती है वो लाइट पैटर्न जो आप लोगों के इंक आप लोगों ने मार्क के निशान को डिटेक्ट करती है। अगर एक से ज़्यादा जगह पे मार्क हो तो आप लोगों को वो गलत कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो सैम्पल यूज़ ऑफ OMR, आप लोग यहाँ पे मार्क करके आते हो तो वो OMR के थ्रू इसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ये याद रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन शीट जो हमारे पास किससे चेक हो रही है। इसी तरह बार कोड रीडर, बार कोड क्या होता है मेरे बच्चे, कभी आप पेन लें या डिवाइसेस लें या इंटरनेशनल आप लोग बुक्स लेते हो तो उसके ऊपर एक इस तरह के निशान बने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ये लाइनें लगी हुई होती हैं, ये हमारे पास क्या होता है, बार कोड। अब इनके अंदर ये बार कोड ये खाली लाइनें नहीं होती, इनके अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है ग्राफिकल फॉर्म में,
ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, बार कोड रीडर एक डिवाइस होती है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है जिससे रीड किया जाता है। स्कैनर यूज फॉर रीडिंग द डिकोडिंग बार कोडेड डाटा, ठीक है। बार कोड्स रिप्रेजेंट द अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा बाय अ कम्बिनेशन ऑफ, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। वर्टिकल लाइन बार्स, ठीक है, बाय वेरिंग देयर विड्थ एंड स्पेसिंग बिटवीन दैम। इसी तरह स्कैनर यूजेज लेज़र बीम to stroke the across the pattern of the barcode. Different patterns of the bars reflect the beam in different ways, ठीक है, सेंस बाय द लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। जो हमारे पास स्कैनर है वो कैसे स्कैन करता है, लेज़र बीम को यूज़ करता है, वो लेज़र बीम जाके उससे टकराती है, ठीक है, जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, और डिफरेंट पैटर्न ऑफ द बार, उसके बार के ऊपर डिफरेंट पैटर्न होते हैं। कोई लाइनें आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही हैं मेरे बच्चे, कुछ लाइनें आप लोगों को विड्थ जिनकी ये ज़्यादा नज़र आ रही है और हमारे पास कुछ थिक नज़र आ रही हैं, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं। इन्हीं पैटर्न्स की बेस पर वो डाटा को डिटेक्ट करती है और कन्वर्ट करती है। ये देखें सारे कौन काम कर रहा है मेरे बच्चे, इसके साथ सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी के लोग, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के हमने डिवाइसेस के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के कमाल हैं जो आप लोग को ईजी चीज़ों को ईजी बना दिया जिसने। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है इज़ द मोस्ट वाइडली नोन बार कोडिंग सिस्टम। ये हमारे पास हर प्रोडक्ट के ऊपर जो इस तरह की लाइनें होती हैं, कोड होती हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी करैक्टर, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है, ग्रॉसरी प्रोडक्ट, ड्रग्स एंड हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिनके ऊपर क्या 03 इस तरह के ये लगे हुए होते हैं, टैग होते हैं। मैन्युफैक्चरर सप्लायर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये नंबर होता है, आइडेंटिफी किसने बनाया है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड, ये प्रोडक्ट कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन बार्स के थ्रू रीड की जा सकती है। और कौन सी डिवाइस यूज़ होती है मेरे बच्चे, बार कोड रीडर। अच्छा देखें, अब मैं आप लोग फिर कह रहा हूँ मेरे बच्चे, इनको बोझ नहीं समझना, ठीक है। और इस टाइम मेरे ख्याल में जो 11 बजे का टाइम है रात के, और मैं आप लोगों का लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नाम भी बनाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जिस चीज़ का जो मेरा फ़र्ज़ है मैं अपना वो अदा करूँ। और मेरे बच्चे, आप लोगों ने इस चीज़ का एहसास करना है और कुछ ना कुछ सीखना है और ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इस तरह मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन, MICR, हमारे पास बैंक्स वगैरह के अंदर ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। जो बैंक के ऊपर चेक होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट स्टाइल के नंबर लिखे हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम से मैं दिखा दूँगा, इस तरह के नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इनको रिकग्नाइज़ करने के लिए, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन, यूज़ बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। जो बड़े बड़े चेक होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए ये MICR यूज़ होती है। बैंक्स आइडेंटिफिकेशन कोड, इसके अंदर क्या क्या चीज़, कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, ठीक है, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच कौन सी है, ETC, अकाउंट नंबर क्या है, एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड, जो उसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं, कोडेड होते हैं, यूजिंग करैक्टर फ्राम स्पेशल करैक्टर सेट ऑन ऑल द चेक्स। स्पेशल इंक इज़ यूज दैट कंटेन, इसको उसके अंदर ख़ास किस्म की इंक यूज़ होती है जो कि इंक को मैग्नेटिक इंक होती है, ठीक है, जिसको वो रिकग्नाइज कर सकता है। यूज़ दैट कंटेन द मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसी तरह जो आयरन ऑक्साइड के मैग्नेटाइज, हम ज़्यादा उसकी साइंटिफिक चीज़ों में नहीं जा रहे, लेकिन इतना याद रखना है कि स्पेशल इंक होती है जो मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल से बनी होती है। इसी तरह MICR रीडर सॉर्टर द रीड्स डाटा ऑन द चेक, चेक के ऊपर जो डाटा मौजूद होता है उसको रीड करता है, एंड सोर्स देम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर बैंक्स, ठीक है, ऑफ द फर्दर प्रोसेसिंग, और उनको प्रोसेसिंग के लिए आगे बैंक को भेज दिया जाता है। तो ये जैसे हमारे पास MICR है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल 0 to 9 एंड 4 स्पेशल करैक्टर्स, ठीक है। MICR इज़ नॉट अडॉप्टेड बाय द अदर इंडस्ट्रीज़ बिकॉज इट सपोर्ट्स ओनली 14 सिंबल्स, क्योंकि ये 14 सिंबल को सपोर्ट करती है, इसलिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं यूज़ करती, लेकिन बैंक्स इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको 40 सिंबल्स काफ़ी हैं। इसी तरह हमारे पास डिजिटाइज़र है, इनपुट डिवाइस यूज़ फॉर कन्वर्टिंग द डिजिटाइजिंग, यानी पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे पास पिक्चर्स हो गई, मैप्स हो गई, ड्राइंग हो गई, उनको क्या करने के लिए डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये ज़्यादातर
कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कॉमनली यूज़ इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बाई आर्टिकल, जहाँ हम कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जैसे इंजीनियर डिज़ाइन द कार्स को डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, रोबोट्स, मैकेनिकल पार्ट्स, उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह हम हाथ से कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, डिजिटाइज़र यूज़ होता है। यूज़ इन द एरिया ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS फॉर द डिजिटाइजिंग मैप्स अवेलेबल इन द पेपर फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखें, ये डिजिटाइज़र है हमारे पास एक, ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट्स टेलस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस हेयर कर्सर टेबल फॉर्म टॉप टैब के हमारे पास ये आप लोग ये सारी इसके पार्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास ज़्यादातर ड्राइंग वगैरह के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं डिजिटाइज़र वगैरह। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड, ठीक है, हैविंग इनकोडेड डाटा अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन फॉर विच दे आर यूज्ड। ये ज़्यादातर हमारे पास जैसे ATM के अंदर आप लोग कार्ड लगाते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर लगा होता है जो उसकी कार्ड के ऊपर मौजूद चिप से इंफॉर्मेशन रीड करके आगे सेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर नॉर्मली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, ठीक है, इज़ यूज टू रीड द डाटा इन, जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और किस काम के लिए, उसमें से डाटा रीड करने के लिए यूज़ होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एंड ट्रांसफ़र इट टू द कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे आप लोग ATM कार्ड लगाते हो, उसके अंदर आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, तो वो वहाँ से रीड करके आगे किसको सेंड कर देता है, कंप्यूटर को सेंड कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, यूज बाय द बैंक्स फॉर द यूज़ इन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये याद रखना है, ठीक है। ATMs and by organization for the controlling the access of employees to physically secured areas। एम्प्लॉयज़ वगैरह को सेव करने के लिए भी हमारे पास ये यूज़ होते हैं। जैसे आप लोग का सिर्फ ATM नहीं है, कार्ड बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग कार्ड स्वैप करते हो, किसी गेट लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं, कार्ड स्वैप करते हो तो गेट ओपन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरह स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस, आवाज़ को पहचानने वाली, जो हमारी आवाज़ को पहचान लेती हैं। इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ अ पर्सन टू इनपुट द डाटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय स्पीकिंग टू इट। जैसे आप लोग देखें कि मैं अपने मोबाइल के अंदर, अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूं, मेरी स्पीच रिकग्निशन से मुराद यह है कि मैं अगर बोलूँगा, कोई एक वर्ड बोलूँ तो कैमरा ऑन हो जाएगा। आप लोग बोलते रहें, नहीं होगा, मैं बोलूँगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग कोई भी और पर्सन बोलता रहे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरी आवाज़ को क्या कर लेगा, पहचान लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीच रिकग्निशन। तो इसी तरह इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ द पर्सन टू इनपुट डाटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय स्पीकिंग टू इट। टुडेज स्पीच रिकग्निशन सिस्टम आर लिमिटेड टू एक्सेप्टिंग द फ्यू वर्ड्स विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल डोमेन। यानी ये ज़्यादा इतना वो नहीं है, कुछ वर्ड्स को पहचान लेता है, ठीक है, और कुछ ज़्यादातर अभी तक स्पीच रिकग्निशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, रिसर्च वगैरह हो रही है। टाइप्स ऑफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, सिंगल वर्ड रिकग्निशन यानी सिर्फ एक वर्ड को पहचानेगा, जैसे येस, नो, मूव, स्टॉप, एट टाइम, एक वर्ड को एट अ टाइम पहचानेगा। इस तरह कॉन्टीन्यूस स्पीच रिकग्निशन, जो हम पूरी आवाज़ को, जैसे मैं बोल रहा हूँ उन सबको क्या करेगा, पहचानेगा, लेकिन वर्ड बाय वर्ड पहचानेगा। सिस्टम कैन रिकग्नाइज द स्पोकन सेंटेंस सच एज मूव टू द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है तो इसको पहचानेगा, रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ होगा। सच सिस्टम आर नॉर्मली, ठीक है, स्पीकर डिपेंडेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, मोस्टली स्पीकर डिपेंडेंट होते हैं, यानी हमें इसके अंदर स्पीकर बोलना पड़ता है। यूजेज ऑफ द स्पीकर रिकग्निशन सिस्टम, इनके हमारे पास क्या क्या यूज़ हैं, फॉर इनपुटिंग द डाटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आप लोग अभी भी कंप्यूटर को बोल कर क्या देते हो, कोई ना कोई कमांड देते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल की एग्जांपल दी। इसी तरह फॉर डाटा इनपुट बाय डिक्टेशन ऑफ द लॉन्ग टेक्स्ट और पैसेज फॉर द लेटर एडिटिंग एंड रिव्यू, आप लोग उसके अंदर राइट भी कर सकते हो ताकि बाद में इसको क्या कर सको, राइट एडिट कर सको या फिर रिव्यू कर सको। फॉर अथेंटिकेशन ऑफ द यूज़र की पहचान के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है, बाय कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन द वॉइस इनपुट, वॉइस की बेस पर भी हम लोगों को पहचानते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी के तौर पर भी हम वॉइस रिकग्निशन यूज़ करते हैं। विजन इनपुट सिस्टम अलाउ द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट द इनपुट जस्ट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट। ये विजन इनपुट यानी देख के पहचान ले, जैसे आप लोगों की आइज़ रिकग्निशन होती हैं, आँखों को, ठीक है, आँख के रेटिने से पहचाना जाता है, फेस रिकग्निशन हो गई, ठीक है, इस चीज़ से हम क्या कहते हैं, विजन इनपुट सिस्टम कहते हैं। अलाउ द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट द इनपुट जस्ट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट, इनपुट डाटा इज नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट शेप एंड फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज।
मेनली यूज टूडे इन द फैक्ट्रीज फॉर डिज़ाइनिंग द इंडस्ट्रियल रोबोट्स वगैरह बनाए जाते हैं इसके, दैट आर यूज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड असेंबली प्रोसेस। अब हमारे पास नेक्स्ट ये था हमारे पास इनपुट डिवाइसेस मेरे बच्चे हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स की। वीएन इनपुट सिस्टम हमने देखे, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हमने देखे, इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर यानी स्कैनिंग डिवाइसेस देखी, ठीक है। डिजिटाइज़र की हमने बात की, MICR की बात की, मैग्नेटिक इंक। तो ये अभी आप लोग की ये सारी चीज़ें आप लोग के माइंड में होनी चाहिए मेरे बच्चे। आप OMR के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये सारी हमारी स्कैनिंग डिवाइसेस थी जितनी भी हमने यहाँ पे पढ़ी है, जो मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं। टच स्क्रीन का मैंने कहा कि हमारे पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। माउस के बारे में पढ़ा और कीबोर्ड के बारे में स्पेशली हमने डिटेल के अंदर देखा कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड किस तरह काम करता है और उनकी कीज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। मेरे बच्चे दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि मेरे ये लेक्चर आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हों और अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। आप लोग भी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं या जब हमारा डिस्कशन का लेक्चर होगा उस वक्त भी आप लोग पूछ सकते हैं।